episode starts with a statistics that makes you stop and think. Pakistan produces thousands of female doctors every year, but hardly very few make it to their career and go into the clinics or the hospitals. Now this, some call it a cultural reality और कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी ये systematic failure है. लेकिन दो डॉक्टर्स ऐसी हैं जिन्होंने इन सारे इश्यूज को ना सिस्टम को ब्लेम किया और ना रियलिटी और कल्चर को एक्सेप्ट किया. Whereas they come up with a method and system that challenge the whole status quo and the norm. उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसके थ्रू वो डॉक्टर्स को पेशेंट्स तक लेकर आए, और ऐसे डॉक्टर्स जो शायद ये सोच रहे थे कि इट्स एन एंड टू देयर करियर. सो आई एम वेरी ऑनर्ड and I would like you all to welcome with me the founders of Sehat Kahani, Dr. Sara and Dr. Iffat. Thank you so much, both of you, that you have agreed to come to this podcast, and inshallah we are going to have a wonderful conversation that is coming out from the heart, kyunki ye, I mean, it resonates with probably every woman who is probably watching the episode, and with all three of us being women. So thank you so much. Thank you for having us. It's a pleasure to be on the podcast. No, absolutely. And Dr. Sara and Dr. Iffat दोनों डॉक्टर्स हैं, और इन्होंने भी ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स ऐसे फेस किए होंगे जिससे वो उन्होंने सोचा कि हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म, इस तरह का टेली मार्केटिंग और टेली हेल्थ केयर सेटअप क्रिएट करें जिसके थ्रू ये गैप को फुलफिल किया जा सके. तो आइए उनसे कन्वर्सेशन करते हैं. बट बिफोर वी मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन, अगर आप इस तरह की कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल राइज बियॉन्ड टाइटल्स. So Dr. Sara and Dr. Iffat, I have a ritual. Season 2 जैसे मैंने कहा अभी lately शुरू किया है, तो Season 2 का एक ritual है, this black card you see over here. So it has a great significance, and this black card is the signature feature of the episode. अच्छा, ये black card को मैं दो दफ़ा टैप करूँगी, which means that the answer that you're going to give or I'm going to give is going to be honest, no matter how comfortable it is. And what I'm going to do is I'm going to hand it over to both of you one by one, and I would request you to tap it first, signifying that you're going to answer the question honestly, no matter if it is uncomfortable, and then read out the question. There are two questions inside, one for Dr. Sara and one for you, Dr. Iffat, and आप वो question out loud read out करें और फिर we would like to hear the answer. So tap first. तो लिख लो नहीं, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी. बोलने की जरूरत नहीं है. It's the tapping signifies that. You'll have to read it out loud. Pakistan produces thousands of women doctors every year. Are we just educating doctors or creating better managed proposals? I think it's a mix of both. Okay. I think जब कहानी शुरू होती है तो it is creating a doctor, but it somehow transitions to a good marriage proposal as well. Okay. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप बचपन से ये सोचते हैं कि बच्ची की बस शादी के लिए डॉक्टर बनाना है, लेकिन जब बच्ची बड़ी होने लगती है, और ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो पर्टिकुलरली हुआ है, कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाता है कि एक कल्चरल जो हमारा फिट है या कल्चरल नॉर्म जो है वो ट्रांसेंड कर जाता है. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके. यस, ये बहुत बड़ी रियलिटी है, बिकॉज माई ओन मदर इन लॉ इज अ मैच मेकर. आई कैन टेल यू विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि इवन टिल टुडे डॉक्टर बहू चाहिए, डॉक्टर बहू चाहिए, गोरी लंबी पतली डॉक्टर बहू चाहिए लोगों को. It's a very unfair, sad reality, but it still happens. Okay, wonderful, great, honest answer. So over to you, Dr. Iffat. Tap first. Tap it. Yes. And Hanji. So AI is already diagnosing diseases, reading scans, and assisting surgeries. So the uncomfortable question is, will the doctor of the future be a human or an algorithm? I think a very interesting question. Okay. I'll put the black card here because we might come back to it towards the end of the episode and see whether your answers still resonate with what you said initially in the conversation. Yeah. I think, so for example, if I talk about Pakistan today, AI is very much there. AI algorithms are in place. A lot of people that we know are speaking to, AI algorithms, ChatGPTs, Claudes, all of those. Yeah. People are speaking, but from a physician's point of view,
it needs certain assistance. It needs to be monitored. So, while AI, assistants or AI physicians may come forward, as a doctor, I believe they should not be left, uncontrolled or unmonitored. And there should be a physical doctor after a certain point who needs to see a patient. And I think at a certain point, in fact, this can actually become really dangerous if you're just uncontrollably speaking to an AI person. और हमने ये देखा भी, हमने ये न्यूज़ में भी पढ़ा कि people spoke to AI and it ultimately led to them committing a suicide, unfortunately, because it was uncontrolled. There was no one monitoring them, and it was not identifying the red flags that are needed to identify of a patient कि यार नहीं, ये patient dangerous zone की तरफ जा रहा है. This actually needs in-person intervention, or this person needs to be referred to, a specialized care. So I think AI can play some supportive role, but leaving AI particularly, uncontrolled in terms of people's healthcare, I think would be really dangerous. Okay. All right. Wonderful. So thank you for your honest answers. And now let's begin our conversation. And I would like to, begin our conversations from the very beginning. How did it all start? I mean, you both trained as doctors. Were you friends? I mean, before becoming founders of Sehat Kahani, were you, friends in your past life? No, we weren't friends. We didn't know each other at all. All right. So I'm sure there's a very, very interesting story behind it. We'd like to know, how it all started. What was the beginning? दोनों doctors थी, क्या हुआ, कैसे मिले, कैसे path जुड़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे? So I think my journey began जब मैं medical college में enter हुई, और I also come from a typical middle class family. So my parents, मैं एक ही बेटी हूँ, तो उनका बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ. नॉट पर्टिकुलरली क्योंकि उनको मेरी अच्छी जगह शादी करनी थी, बस शौक ये था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि वो एक नोबल प्रोफेशन है, सोशली एक्सेप्टेड है. आई वेंट इनटू डाउ मेडिकल कॉलेज, और मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मैंने रियलाइज़ किया कि 80% ऑफ माई क्लास वाज आल्सो वुमेन, और मर्द बहुत कम थे मेरे मेडिकल कॉलेज में, और मेरी क्लास में पर्टिकुलरली. तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो ड्रीम है, एक डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर का ड्रीम है, वो काफ़ी लड़कियों को फीड किया जाता है या काफ़ी लड़कों में पैदा किया जाता है. मुझे डॉक्टर बनने का पर्टिकुलरली उस वक्त तक इतना शौक नहीं था. बट एज़ यू ट्रांजेंट टू डिफरेंट ईयर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं. एक तो आपको प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और नोबिलिटी का एहसास होता है कि कितनी बड़ी चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, किसी का इलाज करना, उसको बेहतर कर देना. और फिर आपको ये भी अंदाज़ा होता है, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई एजुकेशन फ्रॉम डाउ मेडिकल कॉलेज विच इज़ अटैच टू सिविल हॉस्पिटल कराची. तो पूरी पाकिस्तान के मरीज़, कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ जिनके पास और कोई जगह नहीं होती इलाज कराने के लिए, वहाँ पर आते हैं. तो दो चीज़ें मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में होती हुई देखी दैट कॉट माई आई एंड मेड मी वेरी अनकम्फर्टेबल. पहली चीज़ मैंने देखी कि वो सारी ख़वातीन जो कि बचपन से पोजीशन होल्डर्स रही होंगी, तभी वो मेरिट पे आई, बहुत एम्बिशियस पढ़ाई के लिए, बहुत जोश जज्बे के साथ आई. अचानक उनकी कहानी चेंज होने लगी कि कहाँ मंगनी हो रही है, कहाँ शादी हो रही है, बच्चे कितने पैदा करने हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल जो फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, वो उनकी तालीम के बीच में आ गया. एब्सोल्युटली. बहुत सारे मेरे पीयर्स की शादियां हो गई, दे बिकेम प्रेग्नेंट, सम हैड चिल्ड्रन, और कहीं ना कहीं उनका करियर वहीं से डामाडोल होना शुरू हो गया. जब मैं सिविल हॉस्पिटल में पहुंची हाउस जॉब करने के लिए, तो मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि हमारे मरीज़ों को अपने गांव देहातों में डॉक्टर्स नहीं मिलते. बिल्कुल. क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो वो उन अमराज के साथ आते हैं जो शायद बहुत छोटे होंगे, लेकिन क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो सके वो बड़े हो गए. और हर तीसरे चौथे बेड पे एक डेथ होना एक कॉल के अंदर बहुत आम सी बात थी हॉस्पिटल में. तो ये मिसमैच मैंने नोट किया. जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई, मेरी भी शादी हो गई. माई पेरेंट्स मैरिड मी ऑफ वेरी क्विकली ऑल्सो. वो एक उनके अंदर भी एक सोशल कल्चरल फैब्रिक पुट इन हो गया. और कहीं से प्रेशर होता है. बिल्कुल. इतनी बड़ी हो गई, 24-25, तो बस शादी भी हो जाए सही टाइम पे. सो आई बिकेम दैट डॉक्टर ब्राइड, या डॉक्टर बहू जिसको हम कहते हैं, द आइडियल डॉक्टर बहू. हाँ, द आइडियल डॉक्टर बहू. लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि आई स्टार्टेड स्टडीइंग आफ्टर माई मैरिज. मैंने अपनी रेजिडेंसी ज्वाइन करी और मैंने रेडियोलॉजी में रेजिडेंसी शुरू करी. बट आई बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर एन ईयर, तो मुझे वो रेजिडेंसी छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप रेडियोलॉजी में कंटिन्यू नहीं कर सकते अब इफ़ यू आर प्रेग्नेंट. तो 2-3 दिन मैं घर में बैठी जब मैं छोड़ दी अपनी रेजिडेंसी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मैं कोई और चीज़ नहीं कर सकती थी. तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि यार मुझे कहीं कोई चीज़ करनी है, आई कांट सिट एट होम, आई एम फीलिंग यूजलेस सिटिंग एट होम.
तो उसने कहा कि एक एनजीओ है जिसने एक क्लिनिक बनाया है सुल्तानाबाद में, विच इज़ अ स्लम बिहाइंड द यूएस एम्बेसी, और मुझे एक फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत है जो वहाँ पे आके बैठना शुरू करे, मरीजों को देखे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और उसको उस क्लिनिक के लिए भी कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स वहाँ भी नहीं बैठना चाह रही थी। अच्छा, मैं वहाँ पे जाना शुरू हुई, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियली फेल इनटू लव विद माय प्रोफेशन, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जब एक डॉक्टर एक कम्युनिटी में आके बैठता है तो वो कितने मसले सॉल्व कर सकता है उस कम्युनिटी के, औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के। And the level of impact that that Absolutely. individual can create on Yes, that community. because I you're mean, the only आपको- one, हाँ. right? And women don't have to go anywhere. The issues are getting solved. बहुत सारे प्राइमरी केयर के इश्यूज होते हैं लोगों के जो नहीं बिल्कुल, हैंडल होते बिल्कुल. कम्युनिटी में। तो 9 महीने मैंने वो क्लिनिक किया while I was expecting. I had to leave that clinic because my husband got transferred to लाहौर। तो मैं लाहौर चली गई और वो क्लिनिक भी मुझे छोड़ना पड़ा। जब मैं लाहौर पहुंची, और लाहौर में जिस वक्त तक मैं गई वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे आपको फ्लैट्स का इतना सिस्टम नहीं है। तो एक बड़े से घर में चली गई अपनी पहली बेटी के साथ, और माई हस्बैंड यूज्ड टू लीव फॉर हिज वर्क, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं वाकई एक डॉक्टर ब्राइड बन गई हूँ जो अब काम नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि घर देखना है, बच्चा देखना है, जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट इजी। तो दैट पुश्ड मी इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। एक तो वैसे ही मुझे हुआ, ऊपर से वो एक्सटेंड हो गया क्योंकि मुझे लगा अब मेरी डिग्री ज़ाया हो गई है, मैं कभी काम नहीं कर सकूंगी। तो 6-7 महीने बाद द नर्स फ्रॉम माई क्लिनिक शी स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड शी सेड कि आप चली गई हैं डॉक्टर साहिबा, और हमें इन 6-7 महीनों में भी कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा यहाँ पर आने के लिए। what a state of affair. Yes. I mean, such a sad state of affair. Here there is a doctor जो कि इस डिप्रेशन में कि I'm useless, Exactly. and there is a community, you know, जहाँ पे डॉक्टर जहाँ पे डॉक्टर नहीं जहाँ पे, और पूरे शहर के, बड़ा शहर है उसमें बहुत डॉक्टर्स क्रिएट होते हैं, लेकिन वो जगह ऐसी थी उस टाइम पे, वॉर एंड टेरर की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्शियल और कंजर्वेटिव सी कम्युनिटी थी वो। तो उस बच्ची ने मुझे कॉल किया, और फिर मैंने उसको कहा अपनी बोर्डम को फाइट करने के लिए या अपनी यूजलेसनेस को फाइट करने के लिए कि जब तुम्हारे पास पेशेंट आए तो मुझे कॉल पे ले लेना। वाओ। 2-3 दिन बाद उसने कहा कि ये काम नहीं कर रहा बिकॉज उनको नज़र नहीं आ रही आप, शी कांट सी यू ना, कॉल पे तो कुछ नज़र नहीं आता। तो बच्ची बड़ी स्मार्ट थी, उन्होंने एक वेबकैम खरीदा वहीं पे Very smart. टेप से चिपकाया अपने लैपटॉप पे। उसके लैपटॉप में कैमरा नहीं था उस टाइम पे, ये मैं 2012-13 की बात बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने वीडियो कॉल शुरू करी। तो करते करते मुझे एहसास हुआ कि यार मैं लाहौर में बैठी हूँ, पेशेंट कराची में बैठा है, और मैं टेली मेडिसिन के जरिए You're still solving the issues. एंड इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिकल कंसल्टेशन। मैं सही से पेशेंट देख पा रही हूँ और प्राइमरी केयर में उनकी मदद कर पा रही हूँ, एंड दैट जस्ट, कहते हैं ना कि एक लाइट बल्ब मेरे दिमाग में जल गया। अच्छा, आई वॉज 26 एट दैट टाइम। कभी ज़िंदगी में बिजनेस एजुकेशन नहीं ली थी, डॉक्टर्स का बिजनेस एजुकेशन से दूर दूर तक बिल्कुल, ताल्लुक नहीं बिल्कुल, होता, बिल्कुल। फाइनेंशियल्स का कक नहीं पता था, 7 जनरेशन में घर वालों में से किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो जब मुझे आइडिया आया तो I don't know why from the first day I didn't know what to do, but I knew this idea could work. पता नहीं, वो बिलीव जो उस दिन मुझे आया था वो आज तक ऐसे ही कायम है कि ये ज़बरदस्त आइडिया एंड इट कैन चेंज द फेस ऑफ हेल्थ केयर इन दिस कंट्री। तो मैंने एक स्टार्टअप आइडिया लिखा और मैंने कुछ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स में उसको सेंड किया, क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि थोड़े पैसे चाहिए होंगे इसको पायलट करने के लिए। मुझे एक मौका मिला नेपाल में जाके इस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक Wow. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। फर्स्ट टाइम स्टूड ऑन स्टेज, प्रेजेंटेशन बना के दी, और आई वन the first Wow. prize, and I got around $25,000, which was 25 लाख रुपए at that time. Now, जब आप किसी मिडिल क्लास बंदे के अकाउंट में 25 लाख डाल देते हैं तो बहुत घबराहट होती है परेशानी होती है कि पैसे को यूज़ भी करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा देखा, आई नीड टू गो बैक टू कराची एंड आई नीड टू पायलट दिस बिकॉज समवन हैज़ गिवन मी मनी एंड ट्रस्टेड मी। So he was very kind, he shifted his job to Karachi. Wow. And we came back and I started sitting in an office जहाँ पर इफ़त was a medical director in another company. वाओ। तो मैं जिस दिन इफ़त से मिली उस दिन मेरी और इफ़त की जो पहली बेटी थी उनमें 15 दिन का फ़र्क था एग्जैक्टली। तो वी कनेक्टेड एज फर्स्ट टाइम मदर्स, बोथ वांटिंग टू कम बैक टू वर्क, बोथ फीलिंग कि यार हमने शायद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, गलत तो नहीं किया, हमें कुछ करना है। वो अपने करियर को प्रोग्रेस कर रही थी, मैं अपने आइडिया को लेके बैठी थी। And Ifat had been through her own journey as well, which I'm sure she'll tell you.
बट मैंने इफ़त को लूर इन करना शुरू किया, मैंने उसके साथ बैठना शुरू किया, मैंने कहा मैं अकेला तो नहीं कर सकती, मुझे कोई चाहिए, बिल्कुल चाहिए होता खींचना शुरू किया, बिल्कुल चाहिए होता है। और फाइनली मैंने 3 महीने में उनको खींच लिया। लिया जबरदस्त। अच्छा, मुझे बिफोर आई मूव ऑन टू इफ़त स्टोरी, आई एम श्योर कि वो भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी होगी। मुझे ये बताओ कि डिड यू नो योर टेली मेडिसिन या जो आपने लैपटॉप के थ्रू यू स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद द पेशेंट्स, जी, डिड इट हेल्प settle your postpartum depression? absolutely, That's something which absolutely, is very important. I wanted to draw attention of our audience to this factor कि बहुत सारी ख़वातीन postpartum depression का को फेस करती हैं। रिकग्नाइज नहीं किया जाता हमारे माशरे में इसको। सब हमारी माओ ने बच्चे पैदा किए थे, इसमें ऐसी क्या बात है, जी, सब बच्चे पैदा करती हैं, बट उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि कहीं ना कहीं बोर्डम होती है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ यूजलेसनेस होता है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ आई एम नॉट डूइंग इनफ, लॉस ऑफ पर्पस होता है, बिल्कुल होता है। एंड नॉट जस्ट माय फर्स्ट, आई हैव 3 चिल्ड्रन, हर तीनों बार द ओनली थिंग दैट इज हेल्प, I can so resonate with it. I can so resonate with it. Yes. I think मैं तो अपने लिए हमेशा comfortably कहती हूँ कि मेरा जो काम है ना is my sanity. This keeps me sane. मैं काम छोड़ दूँ, मैं पागल हो जाऊँ. So yes, Dr. Iffat, your story now. I think when I met Sarah, I had just resumed work after my daughter was also born. And my story starts with the fact that मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी. I grew up in the Middle East and I come from a broken family. So I was 12 when my parents got separated. तो मैं हमेशा से उस तरह के aspiring ambitious लोग नहीं होते कि यार ओके मेरी अपनी लाइफ में क्या आइडेंटिटी है और मुझे अपनी कुछ आइडेंटिटी बिल्ड करनी है और मुझे ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है. तो इवन अभी भी एंड ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेशनल लोग नहीं होते जो इन्विजन भी करते हैं कि बस मैं लाइफ में ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी. अभी भी हम कभी बैठे होंगे ना तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सोना या पर्सनैलिटी कि मुझे लगेगा बस अभी हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. कभी कभी नहीं भी ऑफ कोर्स ऐसा होता, बट आई थिंक सो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड इन माई माइंड आई थॉट कि ओके मुझे लाइफ में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ बड़ा करना है. एंड एज अ यंग पर्सन एट दैट टाइम वन ऑफ द करियर्स विच फेल्ट विच कुड गिव मी दैट हाई सीम के डॉक्टर बनना चाहिए और इसमें आप ना सिर्फ लोगों की मदद कर रहे होते हैं बट ऑफ कोर्स आपकी सोसाइटी में एक सर्टन स्टैंडिंग होती है. तो आई थिंक आई वाज रियली हाइप्ड अप अबाउट इट. फिर मेडिकल स्कूल में एडमिशन हुआ, डॉक्टर बन भी गए. When I started my career, so I shifted my lines and I was started working in the pharma sector. तो वो एक अलग ही दुनिया है फार्मा की. Being 20 something, you are traveling the world, you are getting to see so many exciting things from a business point of view, not just from a medical point of view. और आई थिंक एट दैट एज आपको ये चीज़ें बड़ी एक्साइट करती हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंस्टेड के एक पेशेंट और एक डॉक्टर हो, आप कोई कैंपेन ऐसी कर रही हैं जो इतने सारे लोगों को रीच आउट कर रही है, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई स्क्रीनिंग कर रहे हैं. तो मुझे बड़ा मज़ा आता था इस तरह की चीज़ों में. आई ऑल्सो गॉट मैरिड इन बिटवीन एंड आई थिंक जस्ट लाइक सारा अ फैमिली विच वॉज रियली सपोर्टिव ऑफ मी वर्किंग. तो वो कोई चैलेंज नहीं था. एंड आई थिंक वो लाइफ का वो पॉइंट था कि मुझे लगा लाइफ तो बड़ी सॉर्टेड है भाई. शादी भी हो गई, कोई मसला भी नहीं है. करियर भी चल रहा है, ये तो ज़बरदस्त हो गया. बट वो हर किसी की लाइफ में कोई सेटबैक होता है. तो आई थिंक मी एंड माई हस्बैंड वी लॉस्ट आवर फर्स्ट चाइल्ड इन अ प्रीमेच्योर बर्थ. और ये यूजली दिस वाज द 6th month ऑफ प्रेगनेंसी. तो यूजली ये वो टाइम होता है कि आपका पूरा कमरा सेट हो चुका होता है, नर्सरी सेट हुई हुई होती है, आपने पूरी शॉपिंग की हुई होती है 6th month तक. तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सडनली यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ मिसहैप. तो उसके बाद आई वाज रियली गिल्ट रिडन. एंड हम रहते तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में ही हैं. तो ऑल्दो कोई आपको बोलता नहीं है, फैमिलीज बड़ी सपोर्टिव होती हैं, बट कहीं ना कहीं देयर आर सम नॉइजेस. जैसे आई रिमेंबर समवन इन माय ऑफिस सेइंग कि आप ट्रैवल कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, तब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ रही थी. मतलब मेरे ऑफिस में लिफ्ट नहीं थी, आई रिमेंबर. तो समवन पॉइंटिंग दिस आउट विच रियली मेड मी रिमोर्सफुल कि यार शायद मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ देना चाहिए था. बिल्कुल. तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कंसीव्ड आई जस्ट क्विट. बट व्हेन माई डॉटर वॉज बॉर्न हेल्दी, 7-8 महीने में मुझे समझ आ गई कि मेरी पर्सनैलिटी घर पे बैठने वाली नहीं है. एंड आई ऑब्वियसली स्टार्टेड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई नीड टू डू समथिंग. नाउ शी इज़ 8 months old एंड दैट्स व्हेन आई जॉइंड दिस वर्क प्लेस. एंड आई थिंक शायद 1 आध महीना ही हुआ होगा एंड आई मेट सारा. एंड
this concept or this idea, you know, resonated with my journey as well so much. क्योंकि हम ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं, this is pre-COVID era, work from home हमारे मुल्क में तो उस वक्त accepted ही नहीं था. बिल्कुल. और आप डॉक्टर्स की बात करें तो work from home तो बिल्कुल ही accepted नहीं हाँ, होता था. मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता बिल्कुल बिल्कुल कि वर्क फ्रॉम होम डॉक्टर्स कर ही नहीं बिल्कुल, सकते. बिल्कुल. डॉक्टर तो वो है जिसको सामने देखा जाए. बिल्कुल बिल्कुल. और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था घर से काम करने का. अच्छा, you asked a question कि we were friends or not. I think one of the basic reasons why our relationship as co-founders has worked for the last a decade now माशाल्लाह. is because we were connected through the idea. We were connected through Sehat Kahani. So while in life we have become now bested of friends, you know. She is the sister I never had and I think vice versa. लेकिन हम कहीं ना कहीं at the back of the mind हमें पता है कि हम connected हैं इस काम के थ्रू. तो वो कड़ी जो है वो बिल्कुल. ये पर्पस है. बिल्कुल पर्पस जोड़े हुए हैं हाँ, आपको. हाँ. तो कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज़ जो हम पर्सनली एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं वो हमारे काम से बड़ी नहीं हो सकती. तो दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट वी डू एंड व्हाट वी बिल्ड इज सो हाई कि अगर हम आपस में बात ना भी कर रहे हो किसी पर्सनल झगड़े की वजह से, विल स्टिल शो अप टू वर्क and do our meetings and do the work and then solve the issue later whatever we are having. अम्मा नहीं होते Which I जो think बच्चों को नहीं friends- बताते कि हाँ. लड़ाई हुई है, टीम को ना पता चले हाँ. लड़ाई हुई Which है. I think friends के साथ उल्टा हो जाता है. Their personal connection is so strong कि वो काम में ट्रांसलेट होने में उनको प्रॉब्लम होती है. मैंने बहुत सारे co-founders के साथ ये होते हुए देखा है, हुआ फ्रेंड्स प्रीवियसली. सो अच्छा, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आप दोनों का कॉम्बिनेशन है कि यू नो यू बोथ आर personalities on your own, but at the same time, and you're very close in terms of your personal relationship, in terms of your even family relationships, and you count on each other, but at the same time it's the purpose that hooks you, which is so great, which is so wonderful and so refreshing to hear. Because अच्छा, एक ये भी तो कहा जाता है जब दो ख़वातीन आपस में मिलके काम करती हैं तो झगड़ा होता है. Here we have some very powerful women, you know, entrepreneurs, not just doctors, entrepreneurs, and you know, managing their relationship, managing their professional life and personal life so beautifully well. So this is wonderful, and wow, what a powerful story both of you have. Thank you for sharing that candidly. So let's lighten things up, and let's do a quick round which is called myth or reality. So I'm going to throw you a few statements and you're going to tell me whether it's a myth or a reality. And since I have two of you here, any one of you can jump in and, you know, comment. ठीक है? So are you ready for that? Yeah. No, Okay, absolutely. wonderful. So telemedicine will replace hospitals one day. Reality or a myth? I think it's a myth. I think it won't replace hospitals. I think it will prevent people from going into hospitals. Great perspective. Patients trust Google more than doctors. Is it a reality? An unfortunate reality, I would say, but something which should be discouraged. Yes, which should be I think they are finding AI and Google, I think, more and more. to be the go-to support That's partner. an answer back, na? Yeah. Doctors and mothers do. बिल्कुल सही है. और टोकते नहीं है ना. नहीं, आप बहुत प्यार से सुनाते तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो. प्यार से समझाते हैं और पैट ऑन द बैक ही दे रहे होते. नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त. We hear you. हाँ, वो अम्मियाँ कभी नहीं बोलती ना, we hear you. हाँ हाँ, तो इसलिए अम्मी अच्छी नहीं लगती, AI ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है. पाकिस्तानी पेशेंट्स लव सेल्फ मेडिकेशन. Oh, absolutely. Everyone loves self-medication and everyone wants to be a doctor. Inside ना सबको डॉक्टर बनना है यहाँ पे, जो नहीं भी बन सकता. I think दो फिनोमेना है, and you can correct me here because आप लोगों का तजुर्बा है. मैं तो एक बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन बेस्ड के ऊपर बात कर रही हूँ, इंस्टिंक्ट पे बात कर रही हूँ कि एक तो ये है कि कौन जाए डॉक्टर के पास, ख्वारी करे. ख्वारी बहुत है, ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाना. और फिर अक्सर ये होता है कि यू नो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, यू सो यू नो कि क्या दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देगा, यू वेटिंग इन द लाइन, यू स्पेंडिंग मनी, और आप ख्वारी करके टाइम लगा के जा रहे हैं, डॉक्टर वही लिख के दे रहा होता है जो आप खुद सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं. तो दैट्स वाई यू अवॉइड गोइंग टू द. और दूसरा ये कि ये फिनोमेना भी है कि भाई हम सबको अल्लामा बनना है. नहीं, बिल्कुल, और ये सही बात है कि पाकिस्तान में डॉक्टर तक पहुँचना वाकई एक बहुत बड़ी ख्वारी है. और हम तो क्योंकि एक प्रिविलेज माहौल में बात कर रहे हैं तो हम इसको ख्वारी कह रहे हैं. आप शहर से बाहर निकल जाएं, अजियत है डॉक्टर तक पहुंचना. जब लोग सखर से चलना शुरू होते हैं कराची तक, या टंडोवाला यार्ड से पहुंचते हैं कराची तक, या बलूचिस्तान और ईरान में हम वेटिंग एरियाज़ में देखते हैं सूटकेस के साथ पेशेंट को लेकर,
तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी बड़ी अजियत है उस पेशेंट के लिए जिसको अपने शहर में डॉक्टर नहीं मिल रहा, वो इतना ट्रैवल कर आ रहा है, और वाकई जब डॉक्टर साहब आपको 10 मिनट के लिए देख के वही पर्चा लिख देते हैं तो होती है फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और स्पेशली देखें जो पढ़ी लिखी आवाम है वो कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के पहुंच ही जाती है, अच्छा ये जेनेरिक, ये दवाई। जो बेचारा जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसको समझ नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं कोई एडवाइजरी चाहिए। Absolutely. फिर जो भी नीम हकीम मिले, वो क्वैक मिल जाए तो वो और ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। जिन कम्युनिटीज़ में हम काम कर रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगी कि किस किस तरह के लोग क्लिनिक्स कर रहे होते हैं। कोई हॉस्पिटल का गार्ड है जो दिन में गार्ड है, शाम में क्लिनिक कर रहा है। कोई वार्ड बॉय है जिसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर है तो वो समझता है कि वो क्लिनिक कर सकता है और लोग जाते हैं। दे मिंट मनी, दे मेक मनी आउट ऑफ इट। रिसेंटली, बहुत रिसेंट है, तो मेरे दिमाग के अंदर ना वो घुस गया वो वाकया। हमने एक क्लिनिक के डिस्पेंसर को दिल के सुराख का इलाज करते हुए देखा है। हाँ बिल्कुल। और बहुत खुद एतमादी से वो इलाज कर रहे हैं, और बहुत ही खुश है पेशेंट कि डॉक्टर साहब जो कि डॉक्टर नहीं हैं वो बहुत अच्छा मेरे बच्चे का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि वो जब भी जाते हैं वो टीका उनको लगा देते हैं, दे थिंक उनका इलाज हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि इसका इलाज तो सिर्फ सर्जिकल है, जो होना है ख़ास टाइम पे, जो एक डॉक्टर बता सकता था उनको। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक अवेयर सोसाइटी में बैठे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह के डाउन द लाइन इश्यूज हैं। अच्छा, एक चीज़ बस मैं एक और ऐड करूँगी कि ये मसला पाकिस्तान में तो है, बट अगर आप देखें तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी बन गया है। अब आप यूके चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, 6-6 महीने तक लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। दीज आर एजुकेटेड, वेल अवेयर पीपल। हमने अभी रिसेंटली आई थिंक सब ने सोशल मीडिया पे देखा कि कोई इंडियन फैमिली थी जो 6 घंटे उन्होंने वेट किया, अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट डाइड। उनको MI हो रहा था। जी बिल्कुल। एंड ही कुडंट रीच द डॉक्टर। तो ये इशू अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहा, ये बहुत हद तक मुझे लगता है ग्लोबल है। एंड दैट्स वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीमेडिसिन और एक्सेसिंग अ डॉक्टर ऑनलाइन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो कि जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे एक डॉक्टर को फिजिकली, वहाँ कम से कम यू हैव समवन ऑन योर फोन। Exactly. Not ChatGPT or not Google. Exactly. Some authentic source जो कि आपको गाइड कर सकता है, trained person. अच्छा, डॉक्टर्स secretly panic when patient say डॉक्टर साहब गूगल पे कुछ और लिखा है। I don't think doctors panic. I think they become very frustrated. They become annoyed. उनकी चिढ़ बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चिढ़ तो बन गई है। सो ग्रेट, यू गाइज डिड वेल इन दिस सेगमेंट। खैर हम इसमें काफ़ी ड्रैग भी किए, लेकिन आई थिंक यू गाइज बोथ डिड वेरी वेल। अच्छा, एक और भी बात है जो आप थोड़ी देर पहले आप ही ने कही थी कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है हर साल, हज़ारों की तादाद में, इनफैक्ट आई थिंक लाखों की तादाद में शायद कर रहा है। लेकिन जब आप सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में देखें तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। ये क्या प्रॉब्लम है? क्या ज़्यादातर डॉक्टर्स, शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, इंटेक ख़वातीन का ज़्यादा होता है, और जब बारी आती है कि जाके करियर शुरू करें वो हॉस्पिटल्स में या इस तरह के हेल्थ केयर सेंटर्स में जाके काम करें तो वो ख़वातीन होती ही नहीं है। फिर देखिए 80% ऑफ योर वर्कफोर्स इज वुमेन। 80-20 का रेशो है, बहुत बड़ा रेशो है। माय गॉड, उसमें से हाफ काम नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 80-90 हज़ार डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और टोटल 2,40,000 डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में स्टैट्स के हिसाब से। ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं, बहुत पुराने हैं, हमें आज की सिचुएशन नहीं पता। बहुत सारे हर साल बाहर चले जाते हैं बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उसको आप निकाल दें। क्या बच गई? आधी वर्कफोर्स बच गई आपकी। बिल्कुल। अब आधी वर्कफोर्स को पैसे भी कमाने हैं, करियर भी प्रोग्रेस करना है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो वो गांव में जाके तो नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे कि वो शहरों में काम करें। तो स्टैट्स ये कहते हैं कि 85% ऑफ योर वर्किंग डॉक्टर्स वर्क इन द अर्बन एरियाज़। तो जो 70% आपका मुल्क है जो रूरल है या पेरी अर्बन है, उसमें सिर्फ 15% डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो दीज नंबर्स टेल यू द स्टोरी। अब जब एक गाँव मोहल्ले में डॉक्टर नहीं पहुँच रहा या एक ही डॉक्टर है, तो फिर वहाँ क्या होगा? मरीज़ को तो जाना है ना किसी के पास। तो जो गांव की दाई होती है, लेडी हेल्थ केयर वर्कर, लेडी हेल्थ केयर विजिटर, कम्युनिटी मिडवाइफ, हकीम साहब, फेथ हीलर साहब, जिनों को भगाने वाले, वो सब डॉक्टर का बैच पहन के बैठ जाते हैं। और क्योंकि मरीज़ के पास बेटर ऑप्शन नहीं है, वो उन्हीं को दिखाना शुरू हो जाता है। एंड सम ऑफ देम आर ग्रेट सेल्स पीपल। तो वो कन्विंस कर लेते हैं मरीज़ को कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उनकी एक पूरी डायनेस्टी बन जाती है। अगर आप गाँव देहातों में जाएँ तो इन्हीं
और फेथ भी उन्हीं पे आ जाता है ना कहीं ना। अरे उनके पास क्लिनिक होता है, उनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उनके पास एक्सरेज हो रहे होते हैं, उनके पास फार्मेसी होती है, उनके पास ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, डिलीवरी रूम्स होते हैं, पूरा सेटअप होता है और कोई ऑफिशियल रिकग्निशन या कोई डिग्री नहीं होती है। बट क्योंकि उनके पास पेशेंट का फेथ होता है और ट्रस्ट होता है, वो जो चाहे कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है कि असली डॉक्टर तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर मरीज उनके पास जाना शुरू करते तो हैं। वो एक्चुअली वो गैप फिल कर रहे होते हैं Absolutely. क्योंकि गैप है, हाँ, सोसाइटी में गैप है। बट ये तो मैल नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस को ही जन्म देता है ना। बिल्कुल। यही तो सारी बीमारियों का प्रॉब्लम है कि जब वो इलाज नहीं कर पाते और इलाज गलत कर करके पेशेंट का मसला इतना बुरा कर देते हैं, फिर वो पेशेंट को लेकर आते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, बड़े अस्पताल, जब जहाँ पे तक डॉक्टर बैठा हुआ है। और जब होता क्या है कि जब वो टर्शरी अस्पताल में भी ज्यादा सही इलाज हो नहीं पाता। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली दे कम टू डाई कंफर्टेबली रादर टू गेट ट्रीटेड एंड गो बैक होम, और सारा मलबा गिर जाता है उस हॉस्पिटल के ऊपर। और डॉक्टर पे कि वो टाइम नहीं दे रहा। हाँ, आई थिंक इसी के बिल्कुल आई थिंक इसी को केटर करने के लिए जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का एक निज़ाम बना हुआ है, वो तरीक़ेकार ये है कि हर कम्युनिटी में एक बेसिक हेल्थ केयर यूनिट होगा, एक तहसील का क्लिनिक होगा, फिर एक RHC होगा, फिर अगर वहाँ पे भी पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ फिर जाएगा वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। इन एन आइडियल सिचुएशन इन सारी जगहों पे एक नर्स होनी चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिस्टम होता नहीं है। सारा लोड फिर आपका आ जाता है टर्शियरी केयर सेंटर में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिन्हें एक्चुअली टर्शियरी केयर की नीड थी, कोई इमरजेंसी थी, कोई क्रिटिकल सिचुएशन थी, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन थी, कार्डियक अरेस्ट हो रहा था या कोई चीज़, अक्सर उनका इलाज डिले हो जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज़ जिन्हें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी वो पहुँच जाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वाई व्हेन वी आर बिल्डिंग दिस सिस्टम विद टेलीमेडिसिन, हम इसमें जो तब्दीली ला रहे हैं वो यही ला रहे हैं कि वो सारे तहसील, RHCs, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स। अच्छा, मुझे डॉक्टर इफ़त आपसे ही पूछना है कि जो आपका सेटअप है सेहत कहानी का, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो किस सेगमेंट के हैं? आई मीन कोई ऐसा है जो गांव देहातों से भी कोई डॉक्टर्स आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, और जो आपका पेशेंट्स नेटवर्क है उसका क्या रेशियो है, किस तरह से अब स्प्रेड हुआ हुआ है? क्योंकि आई एम श्योर जब स्टार्ट किया होगा तो आप अर्बन से गए होंगे, अब आपने जैसे जो बेसिक इकोसिस्टम है जो गवर्नमेंट का होना चाहिए कि तहसील के लेवल पे, फिर कम्युनिटी लेवल के ऊपर, फिर इवेंचुअली टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक रेफ़र किया जाए, तो आपने उस तरह के सिस्टम को लेकर ही अडाप्ट करने की कोशिश की। सो व्हाट इज़ योर रेशियो इन योर सेटअप? सो आई थिंक इंटरेस्टिंगली एक्चुअली हमने पहले रूरल सेटअप शुरू किया इंस्टेड ऑफ द अर्बन वन, और हमने काम इस तरह से शुरू किया कि जो देही इलाकों में नर्सेज अपना क्लिनिक चला रही होती हैं, नर्स हो सकती है, लेडी हेल्थ वर्कर, मिडवाइफ, हमने उनके सेटअप में वहाँ पे हमने उनको टेलीमेडिसिन प्रोवाइड की। और बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ेकार होता है कि एक नर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं नर्स हूँ, मेरे क्लिनिक में एक बेसिक लैपटॉप, कुछ डिजिटल गैजेट्स प्रोवाइड कर दिए गए और फिक्स डॉक्टर्स दे दिए, फॉर एग्जांपल 9 to 1 and 1 to 3 या जो भी उनके क्लिनिक के औकात हैं उसके मुताबिक। तो वो जब नर्स अब अपने क्लिनिक में जाती है, वो उस डॉक्टर से कनेक्ट करती है और जो मरीज़ आ रहे हैं उन मरीज़ों की कंसल्टेशन करती है। कुछ इनिशियल डेमोग्राफिक्स तो नर्स खुद फिल करती है, लेकिन बाद में जो हिस्ट्री है वो डॉक्टर मरीज़ से ख़ुद ले रही होती है डायरेक्टली ऑन कॉल वीडियो पे, और फिर अपना फॉर्म फिल करती है, प्रिस्क्रिप्शन लिखती है। तो बीइंग द नर्स सिर्फ उसको प्रिंट आउट करके पेशेंट को दे देती है। ओके, काम हमने यहाँ से शुरू किया, और उसके बाद 2020 में हमें रियलाइज़ हुआ कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, आपके हमारे जैसे लोग, उनको भी हेल्थ केयर एक्सेस की ज़रूरत है और उनका पेन पॉइंट फ़र्क है। सो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में अगर अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज है, अर्बन प्लेसेस में टाइम की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम सबके पास टाइम नहीं है हॉस्पिटल में जाके बैठने के लिए, डॉक्टर का इंतज़ार करने के लिए। तो वी थॉट कि एक स्मार्टफोन में एक मोबाइल ऐप अगर हो तो हर कोई एक डॉक्टर से एक्सेस कर सकता है। इस वक्त हमारा जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, तकरीबन 7,500 डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने शुरू बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स के साथ किया जो कि शायद इनका गैप आ गया था, या जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर ब्राइड्स थी, एंड दे आर अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क इवन टुडे। बट उसमें भी हमारा क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिंजेंट है कि 3 साल से ज़्यादा आउट ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो एंड शुड नॉट बी आउट ऑफ वर्क फॉर मोर देन 3 years। इस नोशन को रखते हुए इस वक्त हमारा 60 से 70% जो बेस है वो ख़वातीन डॉक्टर्स का है, जिसमें जनरल फिजिशंस भी हैं। हमारे पास स्पेशलिटीज़ हैं, 40 टाइप्स की डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं। अब जो इस वक्त हमारा मिक्स है, इसमें वो डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने
अपनी जर्नी छोड़ दी थी बीच में और अब हमारे साथ ज्वाइन किया है। इसमें वो फीमेल डॉक्टर्स भी हैं जो स्पेशलिस्ट्स हैं, किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में दिन में काम कर रही हैं और शाम में, या जो उनका फ्री औकात हैं, जो उनको लगता है कि वो हमारे साथ डेडिकेट कर सकती हैं, उसमें वो डॉक्टर्स करी हैं। हमारे साथ मेल डॉक्टर्स भी हैं अब, और तकरीबन 20 से 21% ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मुल्क से बाहर हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मिक्स है जिसमें हम हर तरह की स्पेशलिटी को केटर कर रहे हैं, हर तरह के मेडिकल चैलेंज को, हर ज्योग्राफी को केटर कर रहे हैं। तो विच इज़ ग्रेट माशाल्लाह। एक मैं आपसे, आप दोनों से ये सवाल है, स्टार्टअप्स आसान नहीं होते। स्टार्टअप्स का मतलब होता है सब्र, स्टार्टअप का मतलब होता है करेज। सिर्फ सब्र नहीं, ढेर सारा सब्र बहुत सब्र चाहिए, बहुत करेज चाहिए टू फेस सेटबैक्स, एंड बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट होना पड़ता है। ऐसे मोमेंट्स आए आपकी जर्नी में जहाँ आपको लगा बस अब बहुत हो गई, अब आई मीन लेट्स गो बैक टू, मतलब नौकरी तो मिल जाएगी ना, फॉल बैक पे जाते हैं। आई थिंक द लाफ टेल्स मी कि यस देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स। देखिए, आई थिंक बहुत मोमेंट्स आए हैं। आसान नहीं था जब हमने कंपनी शुरू की थी, तो शुरू में तो थोड़ा बहुत लोगों को हजम हो गया, बिकॉज इट वाज अ सोशल एंटरप्राइज। हम क्लिनिक्स बनाते थे लो इनकम एरिया में, तो 2 ख़वातीन डॉक्टर्स लो इनकम एरियाज़ में जाके टेली मेडिसिन करी थी। लोगों को बहुत अच्छा लगता था, हमें बहुत सपोर्ट भी मिला इकोसिस्टम से। जहाँ हमने कहा ना कि अब हम अर्बन एरियाज़ में जाकर ऐप के थ्रू कंसल्टेशन देंगे और पैसे बनाना शुरू करेंगे, पहला तो लोगों वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि वाई डू दे वांट टू क्रिएट अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस, यू नो, हाउ विल दे रन अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, दे डोंट इवन नो हाउ टू रन एन ऐप। तो वो बहुत हमने फेस किया है 2018 से 2021 के बीच में। हमारे केस में द अपॉर्चुनिटी दैट वी टुक ऑन कि जब कोविड आया तो हमने अपनी ऐप लेफ्ट राइट एंड सेंटर सेल करना शुरू कर दी, एंड गवर्नमेंट टुक आवर ऐप, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ बहुत एक्सेलरेट हुई। उस टाइम पे हमने बहुत काम किया। जब हम फंडिंग रेज करना शुरू हुए तो हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप नहीं कर सकेंगी। ख़वातीन को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी 0.4% फंड रेजिंग मिलती है आउट ऑफ ऑल स्टार्टअप्स, और पाकिस्तान में नंबर बहुत ही कम है, 0.1 to 0.2% है। And just because one is a female. Yes, female founders globally face a lot of challenges. Somehow you being a female makes you a riskier investment. ये एक global phenomenon है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। तो हमने ऐसे बट इसके साथ, सॉरी आई एम कटिंग यू, इसके साथ साथ मैं ऑडियंस को रख के एक बात और कहना चाहूँगी कि जहाँ ये प्रॉब्लम है वहाँ फीमेल फाउंडर को अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि कम है। सो हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, जो मैं अपने आप को भी दे रही होती हूँ। दूसरा चैलेंज ये था कि आप पैसे किस तरह रेस करेंगी। माशाल्लाह हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक प्री सीरीज ए राउंड रेस किया $1.2 मिलियन का इन 2021, और फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा एज फीमेल फाउंडर सीरीज़ ए राउंड रेस किया ऑफ $2.7 मिलियन। उस वक्त हमें कहा जाता था कि भाई आप नहीं कर पाएंगी। मुझसे पूछा गया है कि भाई आप ज़िंदगी में, आपको बच्चे पालने हैं, आपको कंपनी चलानी है, आपको ज़िंदगी में बैग्स चाहिए तो आप बिज़नेस करिए या आप पर्पस। हमने बहुत सारे सवाल फेस किए हैं। फिर जब हमने कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई, हमें एज लीडर्स बहुत चैलेंज हुआ। जो लोग हमारे साथ लोग सीरियसली नहीं लेते होंगे। एब्सोल्युटली, आउटसाइड ऑफिस, इनसाइड ऑफिस, बहुत डाउट होता है कि आर यू अ गुड इनफ लीडर टू लीड द कंपनी बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, कि आप इतनी सलाहियत है। बहुत बहुत क्वेश्चन मार्क्स डाले जाते हैं आपके ऊपर। और सोचें कि 2 ख़वातीन जो एक एडवांस एज में भी नहीं हैं, जिनके बच्चे भी हो रहे हैं, जो एक कम उम्री में ये काम करी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ ना रिस्पेक्ट भी औरत की एज के साथ अटैच्ड है। बिल्कुल, दादी तक वो रिस्पेक्ट मिलती है जो आपको शायद 20 साल में मिल जानी चाहिए दूसरे कल्चर्स में। तो हम, यू नो, वी हैड चिल्ड्रन ऑल्सो, वी सेंड देम टू स्कूल ऑल्सो, वी रन अ बिजनेस ऑल्सो, टू मैनेज ऑल ऑफ इट एंड डिमांड दैट क्रेडिबिलिटी and that respect and that authority, I think वो बहुत चैलेंजिंग था, है। और जैसे जैसे हम, you know, हमारे स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले हमारे पार्टनर्स कम थे, हमारे पार्टनर्स बहुत बड़े हो गए हैं। हमारी कंपनी छोटी थी, कंपनी बड़ी हो गई, तो जो स्टेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ गया है, स्टेट ऑफ रिस्क भी बढ़ गया है। तो आज तक भी हम बहुत दफ़ा ये सोचते हैं, कभी कभी दिन में 2-3 दफ़ा भी सोचते हैं बस हम अब शायद नहीं कर सकते या थक गए हैं, बट क्या है पता नहीं, इश्क है, कोई पैशन है, बहुत हमें वाकई वी आर वेरी कनेक्टेड टू सेहत कहानी एज अ पर्पस, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को बेहतर होते हुए, तो हम हर दूसरे दिन वापस आके बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पे कि चलो आज कुछ बेहतर होगा।
और मुझे लगता है कि क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, तो आई थिंक दैट्स सच अ बिग ब्लेसिंग। I think it's a big thing. क्योंकि लोग पर्टिकुलरली जो सोलो फाउंडर्स होते हैं ना, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते द चैलेंजेस दैट दे आर गोइंग थ्रू, एंड लीडरशिप एक बड़ी लोनली जर्नी होती है। तो अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी बात वैसे आपने की है, लीडरशिप इज अ वेरी लोनली जर्नी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव somebody with you by your side. तो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, वी आर एबल टू एक्चुअली टॉक इट आउट एंड शेयर। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि व्हेन वन ऑफ अस इज डाउन, द अदर वन ऑलवेज पुल्स द अदर पर्सन कि नहीं यार हम कर लेंगे। और ये बहुत दफ़ा होता है कि समटाइम्स शी विल बी बकिंग मी अप और आई विल बी बकिंग हर अप कि नहीं यार कर लेंगे, हिम्मत रखो। वो मुझे लगता है आप अकेले अगर हों तो आप बहुत जल्दी हार मान जाएं। तो बिल्कुल। सो इतनी टफ बातें कर ली हमने, इतनी गहरी बातें कर ली, जो कि शायद मैंने स्ट्रक्चर इस तरह किया हुआ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो गहराई इतनी थी कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो हियर आई वांट टू नाउ ब्रिंग a little lighter segment which is called the fun segment, and I'm going to do a rapid fire round. It's called a founder rapid fire, and I'll start with you, Dr. Sara. Hospital shift या startup pitch? Startup pitch. Okay. Boardroom or clinic? For me, boardroom. Boardroom. Okay. AI assistant or junior doctor? Junior doctor. For now. For now, okay. One thing patients do that secretly annoys you. Rather than talking to a doctor on Sehat Kahani, they call directly the CEO if they know me. Okay. That's a good one. That's a very good one. होता है ऐसा? Absolutely. Even people who have put money into my app, अच्छा. instead of using that app, they call me. Oh my God. Oh, ये चल नहीं रहा. नहीं, आप मशवरा दें डॉक्टर साहिबा। हाँ, they trust me more. तो मैं उनसे कहती हूँ कभी ऐप भी यूज कर लिया करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलें, that's wonderful. So coming on to you, Ifat, telemedicine or physical consultation? Telemedicine. Okay. Maybe you prefer physical, but given the circumstances, telemedicine is. Actually, I prefer telemedicine. Even for my kids, for myself. Hospital जाना, वो ख्वारी, मतलब all my kids, they have grown on speaking to a doctor online. Same. Okay. That's great. Investor meeting or medical exam? Investor meeting. Startup stress or hospital night duty? I think startup stress. Startup stress is very tough. आपकी नींदें उड़ जाती हाँ, नाइट ड्यूटी में तो वैसे ही उड़ा के रखनी पड़ती है। तो एक रात की बात है ना, अगले दिन आए तो ठीक है। One health myth Pakistani still believe? Oh, I think there are so many. टीका जो है ना, लाल टीका जब तक टीका नहीं लगेगा, ड्रिप नहीं लगेगा तो हम ठीक नहीं होंगे। जो मेथाकोबॉल का इंजेक्शन है ना, उसने बहुत जो है ना डॉक्टर्स की जिंदगी को अजाब किया हुआ है। वो लगाते हैं ना। नहीं, वो बस वो नहीं, क्या कुछ अजीब मसला है कि मेरा अपना जो घर में डोमेस्टिक स्टाफ है वो कहते हैं गांव जाना है इलाज कराने के लिए क्योंकि वो लाल टीका लगेगा। बिल्कुल, ये आप बात बिल्कुल 100% सही कह रही हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी यही है। हर जगह ये बीमार में सही होना ही नहीं है जब तक टीका नहीं। ड्रिप नहीं लगेगी तो हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, वो जो ड्रिप नहीं लगी ना, हमें ड्रिप का जो मसला, फिर वो ड्रिप की तस्वीर भी भेजेंगे आपकी जो हाउस हेल्प होगी, रे बाजी देखिए ड्रिप लगी है। तो ये पता नहीं क्यों ये एक मिथ है। आई थिंक वो seeing is believing, they want to physically see it to, or experience something कि कुछ इलाज हुआ। नहीं, this is, see, I'll tell you, this is capitalism in the healthcare market. भाई ड्रिप लगती है तो पैसे बनते हैं, डिस्पेंसर कंपाउंडर के पैसे ड्रिप से बनते हैं ना, इलाज तो वो कर नहीं सकते। वो पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं ड्रिप लगाकर। उन्होंने ड्रिपें लगा के पेशेंट को ये बावर करा दिया कि जब तक ड्रिप नहीं लगेगी तुम बेहतर नहीं होगे। एंड बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एन अल्टरनेटिव टू टेल देम कि नहीं ये नहीं करना है, वो इस पे बिलीव करें। इट इज all a big game. Okay. एंटीबायोटिक हर किसी को लगा देना, हर किसी को एंटीबायोटिक लग रही है, नहीं भी जरूरत तो एंटीबायोटिक भर के टू द पॉइंट कि रेजिस्टेंट हो जाए पेशेंट एंटीबायोटिक्स को। Great. So again, both of you have done tremendously well. एक और छोटी सी क्विक गेम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा फन सेगमेंट पे आए, बहुत गहरी बातें तो कर ली। That's called true, false or dangerous. ठीक है? It's a health truth game. ठीक है? Are you guys ready? Okay. And any of you can answer. Antibiotics cure flu. Oh, false. Absolutely. False. Absolute false. Okay. ठीक है, reasons बाद में लेंगे. Drinking warm water cures everything.
Neutral. Not everything That's also a can be myth. treated. It doesn't cure anything. हाँ. Makes you feel better. Yeah. It may be good for a lifestyle or for In the long term, maybe. self medication is harmless. False, absolute big Absolute red flag. false. False. Big red flag, yes. You should only see a doctor when you're very sick. No, absolute No, false. False. Absolute false. You should see a doctor even if you think There is an issue. कट में भी अगर आपके आ जाए ना, कभी आपको इंस्टेंट भी आ जाए कि कुछ मसला है, तो डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए. समटाइम्स योर बॉडी इज टेलिंग यू हाँ. समथिंग एंड यू डोंट हियर इट. अच्छा, ऐसा हुआ है कि आपकी ऐप पे किसी ने लॉग इन किया और मसले हुए, इंटरनेट के मसले भी होते होंगे, कनेक्शन इश्यूज होते होंगे. हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. इसीलिए सिस्टम्स ऐसे बनाए हैं जो उसको कवर करते हैं. तो फॉर एग्जांपल जो हमारी ऐप है उसके ऊपर डॉक्टर और पेशेंट दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. अगर ऐप पे कंसल्टेशन होते होते कॉल ड्रॉप हो जाए, सो वी हैव अ कॉल सेंटर दैट गिव्स यू अ कॉल एंड विद इन 15 मिनट्स वी कनेक्ट यू टू एन अल्टरनेटिव डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमारी खर्चे पे होता है. अगर कॉल कैंसिल हो जाए या मिस्ड हो जाए तो भी आपको कॉल आती है. सो वी मेक श्योर कि डॉक्टर से आपका कनेक्शन हो जाए एंड हाफ द टाइम एन इंस्टेंट रिकनेक्शन इस्टेब्लिश्ड. ठीक है. ऐप के ऊपर एक टॉगल बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है जो आपको शो करता है आपकी इंटरनेट कैपेबिलिटी और डॉक्टर की भी इंटरनेट कैपेबिलिटी. अगर वो ऑरेंज हो रहा है या रेड हो रहा है तो देयर इज एन ऑप्शन फ्रॉम स्विचिंग टू वीडियो कॉल टू ऑडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल टू चैट. तो तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ तो आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है. ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज. अच्छा, दोनों से एक सवाल फाइनली. डॉक्टर सारा, व्हाट वुड यू से टू योर यंगर सेल्फ? लेट्स से 15 साल पुरानी सारा को, जब वो डॉक्टर बन के लाहौर में बैठी थी और वो जूझ रही थी अपने इस मसले से कि अब क्या करे वो, ठीक है, उसको आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आज मैसेज देंगी उसको? मैं उसको ये मैसेज दूंगी कि जो तुमने 30s में आके अनलर्न किया अपने बारे में और अपने आप को पहचाना, वो अपने 20s में पहचानो, so that you do not waste those 10 years understanding yourself, because what you are right now is not what you should be and not what you really are. ओके बहुत गहरी बात कह दी. और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो अभी हम थोड़ा सा ऑफलाइन भी बात करते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके पास कितना पोटेंशियल है. Absolutely. उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई विल कम टू यू एज वेल, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई लुक एट माय डॉटर्स नाउ, जितना हम उनको फ्रीडम देते हैं और जितना उनको सोचने की आज़ादी है कि यू कैन बिकम एनीथिंग दैट यू वांट, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे अपनी जवानी में या मुझे अपनी उस एज के अंदर मुझे ये बताया जाता कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तो आज मैं बहुत कुछ हो चुकी होती है. ये तो मुझे बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कर सकती हूँ कुछ भी. सो इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको पता ही नहीं होगा कि वो तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया गया, सलाहियत ही नहीं दी गई. तो ये दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल यू वुमेन वॉचिंग आउट देयर. एंड नाउ टू यू डॉक्टर इफ़त, आप अपनी 20 साल पुरानी वाली इफ़त को इस पर मिलकर एक वीडियो बनाई हुई थी. आई थिंक इस बारे में बड़ा एक ट्रेंड हुआ था कि व्हाट वुड यू डू इफ यू स्पीक टू योर. आई थिंक आई वुड टेल हर कि वेयर द जर्नी हैज़ टेकन यू इन लाइफ. और बहुत सारी जर्नी में चीज़ें जब आप यंगर होते हैं तो आप नहीं इन्विजन कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं. आई थिंक आई वुड टेल हर कि ज़रूरी नहीं है जो इनिशियल एक बात आपने सोचा वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है. सक्सेस के कितने सारे डिफरेंट फैसेट्स हो सकते हैं विच आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लोर इन लाइफ. तो आई थिंक आई वुड टेल हर कि the beauty of success in so many different facets that actually alhamdulillah Allah has been kind in giving us that opportunity. जो हम अक्सर बात भी करते हैं कि in this age हमने alhamdulillah कितने ऐसे पर्सनैलिटी से मुलाकात कर ली अपनी ज़िंदगी में जो लोग सिर्फ इन्विजन करते हैं, या कितनी ट्रैवलिंग कर ली दुनिया में, कहाँ हम जा पाए बिकॉज ऑफ आवर वर्क. तो आई थिंक आई वुड टेल हर कि दिस इज व्हाट इज गोना हैपन इन योर लाइफ. अपनी पहचान बना पाए. सबसे बड़ी बात तो ये आई थिंक वी ऑल स्ट्रगल टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटीज द होल ऑफ योर लाइफ. एंड इफ यू गेट टू डू दैट, इफ यू गेट टू बी रिकग्नाइज्ड, यू क्रिएटेड योर ओन ब्रांड, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और शायद इसी को लोग बहुत सारे हजम नहीं कर पाते कि यू बीइंग विमेन यू हैव क्रिएटेड एन आइडेंटिटी, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, यूर एंटरप्रेन्योर्स, यूर डॉक्टर्स, you're credible, and you have embedded technology. I think all जो
checks है ना आपके, they are like tick tick tick, so it's hard for many to accept. आई थिंक मुझे लगता है आइडेंटिटी ऑफ कोर्स इज़, और बहुत सारी ख़वातीन की आइडेंटिटी कुछ ना कुछ होती है. मुझे लगता है कि मैंने जो एक ज़िंदगी में चीज़ सीखी है, औरतों की एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है. एजेंसी आती है व्हेन यू गेट इक्वल स्टेक इन डिसीजन मेकिंग. जब आपसे पूछा जाता है घर पे भी, हर डिसीजन में, बाहर भी डिसीजन में, जब आपकी बात की वर्थ, वैल्यू होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी आपके बियॉन्ड प्रोग्रेस करती है. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन रिकग्नाइज होती हैं या बहुत वेल सेटल्ड होती हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनके पास एजेंसी नहीं होती कि वो कोई डिसीजन ले सकें. वो बच्चों के स्कूल से लेकर, शादियों से लेकर कुछ भी नहीं कर पाती. दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स डिसीजन टू गाइड देम थ्रू. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिली है थ्रू माई वर्क, एंड आई सी दिस इन अ लॉट ऑफ वुमेन हु अचीव हाई, इज़ दे गेट एजेंसी फॉर डिसीजन मेकिंग. और उनके डिसीजंस को वैल्यू करने की पावर, कि अगर मैं कह रही हूँ तो यू नीड टू लिसन टू मी बिकॉज आई हैव दैट पावर एंड एजेंसी टू बी एबल टू टेल यू दिस. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टाई इन है विद यू बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ओह वाह, I firmly believe that. एब्सोल्युटली. Financial independence gives you the power to think, the power to enforce your decisions and to decide actually, the power to decide. With this last message आप क्या कहना चाहेंगे to young women out there? बहुत सारी जो ख़वातीन आपको देख रही होंगी, एस्पायर कर रही होंगी, क्या कहेंगे आप उनको? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर यंगर वुमेन अपने आप पे भरोसा करना और अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स वुमेन आर स्टक इन दिस नोशन कि कोई उनका सेवियर आएगा. अगर वो काम करना भी चाहती हैं तो एक नोशन ये होता है कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्ट करेगी फिर तो मैं करूँगी. हाँ. वो ये भूल जाती हैं कि कभी कभी पूरा सिस्टम उनको खुद ही क्रिएट करना है. अगर अपने आप को काम करना है, आपको कहीं बाहर निकलना है, कोई चीज़ करनी है, सो यू आर योर सेवियर. कोई और आके आपको नहीं सेव करेगा. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आई हैव चिल्ड्रन एंड आई डोंट हैव, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव वुमेन इन माई फैमिली हियर टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन. तो वो सिस्टम मुझे खुद ही बनाना है. मुझे किस तरह के मुलाजिम हायर करने हैं जिन पे मैं बच्चों को छोड़कर जा सकती हूँ, मुझे किसको घर पे रखना है, क्या मुझे घर पे कैमरे लगाने हैं, और किस तरह मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, ये भी सब आप ही का काम है. बिल्कुल. और चाहे कितने भी सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स हों, especially when it comes to children, they may want you to be more cautious. So you have to bring that trust in yourself and you have to give them that trust and confidence कि नहीं यार मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मेक श्योर करूँगी कोई नेग्लिजेंस भी ना हो, बट मैं काम भी कर लूँगी, मैं ये कर सकती हूँ. तो एक तो मुझे लगता है कि वो हमेशा समझते हैं ना कि कोई उंगली पकड़ के उनका रास्ता क्रॉस कर देगा, ये ऐसा कोई नहीं होगा. यू योर सेल्फ आर गोइंग टू बी दैट पर्सन टू क्रिएट दैट जर्नी फॉर योर सेल्फ. तो एक तो मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन को कि दे नीड टू कम आउट ऑफ दैट सेवियर नोशन. दूसरा मुझे लगता है कि एवरी वुमन हैज़ सो मच पोटेंशियल, दे कैन डू सो मच इन लाइफ, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ देयर करियर्स, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप समथिंग. डोंट गिव अप सो ईजीली ऑन योरसेल्फ. बिल्कुल. आई थिंक बहुत ही इतना पावरफुल मैसेज है आपका, इतना एम्पावरिंग मैसेज है कि मतलब अंदर से हिला दे किसी को भी. और आपका मैसेज? I think I'll give you a little context. I think जब मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का एक पर्पस था कि उन्होंने अपने आगे वाली जनरेशन को या उस जनरेशन की ख़वातीन ने अपने आगे वाली जनरेशन को पढ़ाना है. बिकॉज उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. मेरी जनरेशन में ये चेंज आया है कि औरतों ने पढ़ा तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बदली. वी स्टार्टेड वर्किंग, उसमें से कुछ ने अपना करियर शुरू कर दिया, बट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन स्टार्टेड वर्किंग. तो एक वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट आया, और एटलीस्ट औरत घर से बाहर तो निकली, उसने पैसे तो कमाए. बट फॉर माई डॉटर्स या द जनरेशन हु इज कमिंग आफ्टर मी, दे हैव एन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाउ गेटिंग इन टू लीडरशिप पोजिशंस. दे नीड टू चेंज this phenomena ke women do not have a seat at the table, they don't have a vote of talking when decisions are being made. उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यंगर जनरेशन नीड्स टू एस्पायर फॉर लीडरशिप एंड नथिंग लेस. ये नहीं कि काम कर लिया घर से निकल के, नहीं यार ऊपर कैसे पहुंचना है, बिकॉज उनकी इन्वायरमेंट हमसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी, थोड़ी सी बेहतरी आएगी. सो दे ऑल्सो नीड टू एस्पायर टू दैट स्टेज. सो आई थिंक इन द एंड द मैसेज इज दैट यू शुड एस्पायर फॉर लीडरशिप पोजिशंस. नथिंग लेस शुड मेक अप फॉर यू, बिकॉज अगर बहुत सारी ख़वातीनें सोचेंगी तो उनमें से फिर कुछ पहुँच भी जाएंगी, एंड दे विल देन चेंज the narrative for tomorrow.
So I think it's very important for them to aspire for that leadership position. Thank you so much for such a wonderful conversation, मज़ेदार conversation और powerful conversation. और इसके साथ साथ अगर ऐसी कहानी इतनी पावरफुल कहानी और इसी तरह की कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो पहले तो ये कहानियाँ आप ज़रूर शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, राइज बियॉन्ड टाइटल्स विद उरूसा. एंड विद दिस आई एम साइनिंग आउट टुडे, योर होस्ट उरूसा मेराज. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.